Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is Karishma Dhakar, your coding teacher. So guys, this is a table app and so many students makes this app but actually they don't know what is the exactly meaning of this coding. Okay, in this table app. So first of all, look at this app, run, click, select a number of table like 5 and select a digits up to 10 like and go. Okay, so this is a table of 5 till 10. Okay, so what is the coding we are using for this app? So I will explain you the exactly meaning of this table app today. So first of all, before coding, you have to understand the process of table. Okay, how can we calculate a table? How can we multiply? Okay, like this. So I'm using the Annonate. Okay, so here I'm taking a number of table like 2. Okay, so what is the method of multiplication of a table like this? 2 multiplied by 1 is equal to 2. 2 multiplied by 2 is equal to 2. Sorry, 4. Okay, so 4 like this. 2 multiplied by 3 equal to 6. Okay, okay, so this is the method of table. So यहाँ पर actually हो क्या रहा है? This is a main digit. Okay, we are choosing 2, 3, 4 जिसकी table हमें चाहिए. Okay, so this is exactly one number. Okay, this is our result. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so these numbers are our results. Okay, and one number कि हमें टेबल कहाँ तक प्रिंट करनी है टिल 10 टिल 20 टिल 30. Okay, so for example I'm using we are using 10. Okay, till 10 we are displaying the table. So 10 is also a number which we have to store. Okay, and the main important thing is these numbers, these increasing numbers. Okay, by one, by one, by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 10. If you are selecting till 20, so this number continues with 20. Okay, so this is the method of multiplication, right? So first of all, we have to know that how many variables we have to use for this table app, right? So one variable for this, for number जो हमने चूज किया है किसकी टेबल हमें प्रिंट करवानी है. One variable for this result, right? One variable for this result, one variable for this the last number कहाँ तक टेबल प्रिंट करवानी है, and one variable for this 1 2 3 4 5. ठीक है, the increasing order of numbers. ठीक है, ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा always. ठीक है, these numbers are starting with 1 only. Okay, so this is a method of table. So we will use 4 variables in this table app. Okay, so let me clear my drawing. So here you can see in this code, we are using 3 variables here. Okay, firstly, and one variable in this for loop. Okay, so we are using 3 variables here, x, y, and z. ठीक है, the blank variables. Okay, don't initialize it, just create them. This code is for set screen. Okay, first screen to second screen. The actual code starts with here, right? So you can see this is a on event. Let me one second. Let me open the another screen. The screen table. Okay, fine. So you can see here
we have a button here, go button. Okay, so idea of this go button is like this, go button tables, right? When we click on this table, so हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी, राइट? सो जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या मेथड, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है? सो फॉर दिस हमने जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज सॉरी क्रिएट किया था एकदम स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड, अब हम उन्हें इनिशियलाइज करेंगे, राइट? एक्स को हमने इनिशियलाइज किया, गेट नंबर टेक्स्ट इनपुट 1, आईडी ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स। इसमें मैंने आपको पहले बताया था जो नंबर हम चूज कर रहे हैं फॉर टेबल, ठीक है? सो दैट इज एक्स। व्हाट इज दैट? कहाँ तक आपको टेबल प्रिंट करवानी है? ओके, सो फॉर दिस वी आर यूजिंग अ ड्रॉप डाउन, ओके, 10 20 30 40 as you wish, okay, and one variable for result y, y variable is for result। अभी हमें रिजल्ट नहीं पता है, हमने स्टोर कुछ नहीं करना है, जस्ट अ स्पेस हमने स्टोर कर देना है, एक ब्लैंक वेरिएबल, ओके। सो फॉर दिस हमने जस्ट इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस स्टोर कर दिया। आफ्टर दैट द important thing is come here, a for loop, ठीक है? आप सभी जानते होंगे व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप इज फॉर रिपीटिंग समथिंग, राइट? सो हियर हमने देखा था कि एक चीज रिपीट हो रही है। कौन सी चीज रिपीट हो रही है? द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर विथ ascending numbers like 1 2 3 4 5 6, right? And these numbers are increasing by 1, okay? सो रिपीटेशन तो हो रहा है, भले ही नंबर की वैल्यू एक से ज्यादा हो रही है, एक से इंक्रीज हो रही है, पर रिपीटेशन तो हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर लूप हियर, ओके। फॉर लूप में हमने एक और वेरिएबल यूज किया है, दैट इज आई। लेट मी यूज अनोनेट अगेन, ओके, वन मोर वेरिएबल आई इक्वल टू 1, ओके, बिकॉज जो टेबल है उसकी स्टार्टिंग हमेशा हम 1 से मल्टीप्लाई करके करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 से कभी नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इनिशियलाइजेशन हमेशा 1 से होगा। आफ्टर दैट द कंडीशन पार्ट इज कम, ओके। फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, ओके, उसमें हमें एक वेरिएबल हमेशा डिफाइन करना पड़ता है और उसको एक नंबर से इनिशियलाइज करना पड़ता है, okay। The second term is, the second parameter is condition, आपको for loop कब तक रन करवाना है, okay। So in the second parameter, this is a condition I less than equal to z। So what is that? The increasing number 1 2 3 4 5, okay। The starting value is 1 and z is कहाँ तक हमें टेबल को प्रिंट करनी है, 10 20 30। अभी हमने चूज किया लाइक दैट, ओके। सो आई की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू हो गई 10 फॉर नाउ, ओके। सो नाउ वी आर चेकिंग आई लेस देन इक्वल टू 10। सो हमारी कंडीशन इज ट्रू ना, ओके। हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, इनसाइड द फॉर लूप, एंड द लास्ट पैरामीटर इज आई प्लस प्लस। वी हैव टू इंक्रीज, या, बिकॉज सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई तो हमेशा करना नहीं, ठीक है? प्लस 1 करते रहना है, 1 से, then 2 से, then 3 से, then 4, then 5, like this, okay। So we have to increase one value here, okay। But the main चीज तो मैम यही है, यही हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही, क्या है, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले यू कैन सी हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज आपको दिख रही होगी, राइट? इसमें यू हैव टू नोटिस नाउ, दिस इज आवर नंबर जो हमने स्टोर किया था, कौन से वेरिएबल में? एक्स वेरिएबल। सो दिस इज आवर एक्स, करेक्ट? ये वाला हमें जस्ट प्रिंट करना है,
सिर्फ दिखाने के लिए, ओके, शो करने के लिए ओनली हमें प्रिंट करना है। सो हम इसे एज अ स्ट्रिंग बनाकर डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको लाइक बड़ा कैपिटल एक्स लिख देती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट इसे हम स्मॉल एक्स बना देते हैं, ओके। एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज वन। व्हाट इज वन नाउ? द आई वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। आई वेरिएबल की वैल्यू थी वन। सो यहाँ पे क्या है? आई, अगेन वन मोर स्ट्रिंग इक्वल टू हमने कुछ कैलकुलेशन यूज नहीं करना है, जस्ट शो करना है, जस्ट शो। सो हमने वापस इक्वल टू को स्ट्रिंग बना के प्रिंट करवा देंगे, ओके। एंड द लास्ट थिंग द रिजल्ट, ठीक है। लास्ट थिंग क्या होगी? हमारा रिजल्ट। रिजल्ट किस में स्टोर होगा? हमारा वाई में स्टोर होगा, ठीक है। सो ये चीज, अभी रिजल्ट को आप छोड़ दीजिए, अभी आपको क्या करना है? जस्ट ये वाली चीज यूज करनी है, ठीक है। इक्वल टू साइड, सॉरी, ठीक है। वाई हम राइट हैंड साइड में ना लिख के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज इन द कोडिंग ऑलवेज जिस चीज में हम स्टोर कर रहे हैं किसी चीज को, किसी वैल्यू को, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आती है, ओके। सो लेट मी क्लियर अगेन। सो जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, ओके, व्हेन आवर कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 10, सो कंडीशन इट मींस ट्रू। हमारा लूप कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा, और 10 तक हमारी टेबल प्रिंट होगी। अगर आपने यू सेलेक्ट किया होता 20, ओके, सो 20 तक हमारी टेबल प्रिंट होगी, ठीक है। इट मींस फॉर लूप भी 20 तक चलता। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग z here, okay. So here in the body of a loop, for loop, we are writing first of all y. What is y? Storing the result. एक वेरिएबल हमने बनाया था जिसमें हम किसको स्टोर कर रहे हैं? रिजल्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, करेक्ट। y इक्वल टू, अब हम वापस इस पूरे जो लाइंस लिखी हुई है वापस मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस y को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके आगे वाले स्टेटमेंट्स को देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है x, स्मॉल x। व्हाट इज x? जो नंबर है भाई, ठीक है। ये हमें बिकॉज प्रिंट करना है एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, इस तरह से हमें प्रिंट करना है। इसी वजह से हमें इतना लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, ओके। x, स्मॉल x, देन कॉन्कनेट करने पड़ेगा दो चीजों को, ठीक है। इफ वी आर यूजिंग मोर देन वन वेरिएबल और मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन स्ट्रिंग इन अ सेम लाइन, सो वी हैव टू यूज द प्लस कॉन्कनेट, ठीक है। सो हियर वी आर यूजिंग प्लस हियर, ये वाला प्लस ऐड नहीं करेगा, ठीक है। दिस प्लस इज नॉट यूज फॉर एडिशन, दिस इज अ कॉन्कनेट ऑपरेटर, ओके। आफ्टर दैट x प्लस स्ट्रिंग, जो चीज हमें डायरेक्ट एज इट इज प्रिंट करनी है। कौन सी चीज प्रिंट करनी है इसके बाद? ये मल्टीप्लाई वाली। सो हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा, ठीक है, टू मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या आना है? 1, अगेन कॉन्कनेट लगेगा प्लस, ठीक है। अगेन कौन सा वेरिएबल यूज होगा? 1, 1 किसकी वैल्यू है? i की वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे यूज होगा i। आफ्टर दैट अगेन एक plus, it means concatenate, okay। one more string here equal to, because equal to को भी हमें as it is print करना है, okay। इतना चीज हमारा प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट हमें चीजों को मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। मल्टीप्लाई करना है, कौन सी चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा? कौन सी चीज? ये y स्मॉल x और ये i, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा वो आंसर आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। कौन से वेरिएबल्स? एक तो स्मॉल x, ये स्मॉल x मैंने यहाँ लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ओके। एंड यहाँ पे i, x मल्टीप्लाई बाय i, दैट्स इट। अब एक चीज जो आपने लास्ट में देख रहे हैं स्लैश n, ये किस चीज के लिए होता है?
एक कॉन्कनेट और लगाएं बिकॉज एक और चीज हमें ऐड करनी है इन द सेम स्टेटमेंट्स. ओके, वी आर राइटिंग इन द डबल इन्वर्टेड कॉमा एज अ स्ट्रिंग. हम इसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्लैश एन. स्लैश एन इज यूज फॉर नेक्स्ट लाइन. जैसे ही ये चीज हमारी प्रिंट हो जाती है, कौन सी चीज, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, तो हमारी नेक्स्ट वाली वैल्यूज इसके नीचे प्रिंट हो, लाइक यहाँ पर. ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इन द येलो कलर. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, लाइक दिस. इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए. अगर ये स्लैश एन आप नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा एक ही लाइन में सारे टेबल को वो प्रिंट कर देगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्लैश एन. ठीक है, एंड ऑफ द लाइन, पूरी लाइन के एंड में आके वो नीचे शिफ्ट हो जाए आपका कर्सर. राइट, ठीक है जी, हो गया ये वाला क्लियर. ठीक है, एक 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हमारा प्रिंट हो गया. और एक किस चीज किस वैल्यू में, कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, वाई वेरिएबल. ओके, ये हमारा वाई वेरिएबल है, इसमें जाके स्टोर हो गया. पर मैम आपने एक चीज सबसे पहले छुड़वा दी थी, कौन सी चीज, ये वाई. ये वाई आपने ऐड नहीं करवाया, इसके बाद वाली सारी लाइंस आपने बता दी. इस वाई को हमने क्यों यहाँ पे यूज किया है, तो गाइस हमने इस वाई को यूज इसीलिए किया है बिकॉज हम पूरी की पूरी टेबल एक साथ प्रिंट कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं कर रहे. ठीक है, फुल टेबल को हम एक साथ प्रिंट कर रहे हैं. 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 से लेकर 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 तक प्रिंट कर रहे हैं. ओके, सो इसके सहित आपकी सारी वैल्यूज एक साथ वाई में जाके स्टोर हुई और हमने आफ्टर द लूप, ठीक है, आफ्टर द लूप इट मीन्स आउटसाइड द लूप, हमने सेट टेक्स्ट करके टेक्स्ट एरिया 2, दिस इज अ टेक्स्ट एरिया 2. ओके, यहाँ पे किसको प्रिंट कर दिया, वाई को प्रिंट कर दिया जिसमें हमारी फुल टेबल है. दैट्स इट. ठीक है, सो अभी हम इसे रन करके देखते हैं. रन, क्लिक हियर, यूज 45 लाइक अप टू 10. ओके, लाइक यहाँ पे हम यूज करते हैं अप टू 20 एंड गो. लुक, ठीक है, 1 to 20 तक आपकी फुल टेबल प्रिंट हो गई. सपोज अगर हम इस y को यहाँ से नहीं लें, ठीक है, आई एम डिलीटिंग इट, कम टू द शो टेक्स्ट, सेव, रीसेट अगेन, सॉरी, रन, select number like 5. लुक, अगर आपने y प्लस नहीं किया है तो जस्ट लास्ट वाली वैल्यू y ने स्टोर की और प्रिंट कर. ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए हमने y प्लस लिखा कि पहले वाली वैल्यू भी वही रहे और इसके नीचे ऐड होती जाए. दैट्स वाई वी आर यूजिंग y हियर. ओके गाइस, सो रीसेट इट, y प्लस. अगर हम यहाँ पे स्लैश एन ना लिखे तो क्या होगा, लुक, रन, क्लिक, 5, okay, 5 into 1 equal to 5, 5 into 2 equal to 10. पूरा ऐसे लाइन से वो एक ही लाइन में दिखा है बिकॉज द टेक्स्ट एरिया है, वैल्यू उसकी कम है, इसीलिए वो जैसे ही फर्स्ट लाइन फिनिश होती है वो नेक्स्ट लाइन में. बट दिस इज नॉट द राइट वे, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज स्लैश इन नेक्स्ट लाइन. ठीक है, reset it, come here, use a plus, put it commas and slash in. ठीक है, run, click, 3, go. Okay, it's like good. Okay guys, so this is the full code of this multiplication. Thank you for watching my video.